So from today, what we'll do, we'll start with a new topic. Actually, we have started this topic, but we have paused it. So we'll start today with what the topic of network topology. So we discuss this network topology, but still we read it and then we'll start the different types. So what is network topology? Network topology is physical layout of a system connected. यानी टोपोलॉजी किसको बोलते हैं? फिजिकल कनेक्शन को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं. And we are discussing about network topology, and we are making a network of computer here. So definition we have discussed last time, and from today we have to start these four different types of topology. So these are the four different types of topology. First is called bus topology, second is called ring topology, fourth is called the mesh topology, and the last one is called the star topology. Out of this four topology, the best topology is a star topology. If you see any kind of network, whether it's a big network or a large network, network of 2 computers or network of 50 computers, 100 computers, definitely you will go for star topology. You must have seen the network of in our lab also. Which topology we are using? Star topology. If you just go to the company also, there are many hundred of computers are there. So which topology they are using? We are using the star topology. Means from many years, which topology has been used, the star topology has been used. Still date, there is no replacement for the star topology. But what are the different types of topology? We will discuss one by one. Bus is first one is bus, second is ring, third is mesh, and the fourth is star. So what we'll do, we'll start with the first one, that is a bus topology. Bus topology कैसी रहती, कहाँ use होती, that we'll see now. So first of all, we'll see the figure. After that, we'll write. If we just see the figure, if we see the figure, actually we have clear अपन यहाँ पर रोके थे mostly. तो ठीक है, अभी कंटिन्यू होता है, अपन फिर से एक बार आ गए. Again we'll start now. So what happened in the bus topology? If you see the figure, these are the 5 different computers. There may be n computers may be there. If you just see computer number 1, there is a cable coming from computer number 1 and then going to the next computer, and again from next going to the third one, then going to the fourth one, then going to the fifth one, and so on. इस तरह से आप कितने भी computers क्या कर सकते हैं? You can connect in the bus topology. We just see the figure, what becomes to know that there is a single cable. This is a single cable. You can just see this is a single cable, and to this single computers, multiple computers can be connected. In our figure, we have connected how many computers? 5 computers. Now, if you want to connect computer number 6, you can just take computer number 6 and take this cable and come here or from this side anywhere, no problem. So this is one way of topology. This topology was used in starting when the networking was developed. एकदम स्टार्ट में जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे और नेटवर्किंग का स्टार्ट हुआ था, तो वो केसेस में द फर्स्ट टोपोलॉजी वाज द बस टोपोलॉजी. नाउ व्हिच इज द फर्स्ट टोपोलॉजी? सबसे पहला कंप्यूटर के कनेक्शन जो हुए हैं वो कौन से टोपोलॉजी के हुए? दैट वाज अबाउट द बस टोपोलॉजी. So this topology having some advantage also and disadvantage also, but many disadvantages are there in bus topology. Therefore, this topology practically it is not used for the computers. What I am telling that this topology is used, still it is used. आज भी use होती है, but not in computer, in other devices. Can anyone give me the examples कि ये topology अभी कहाँ पे use होती है? कोई थोड़ा सोच के बोल सकता है. आपको पता है, आप सभी को पता है ये टोपोलॉजी यूज होती है, but not in computers. I'm telling not in computer but in other devices. तो कहाँ पे यूज होती है ये? Yes, anyone? Yes, no, कुछ तो बोलना है. क्लास को ऐसे पॉज करने देने का, पॉज करने देंगे फिर.
सर कंप्यूटर में नहीं यूज हो रहा, ऐसा क्वेश्चन है आपका? कंप्यूटर में यूज नहीं हो रहा, मगर कहीं ना कहीं ये यूज हो रहा है। तो कहाँ पे यूज हो रहा है? यस। सबको मालूम है उसका आंसर, करके मैं रुका हूँ। और वो डे टू डे लाइफ का डिवाइस है वो। मैक्सिमम घरों में अवेलेबल है। अभी ये भी हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम हाउस। सर टीवी बता रहे हैं सर। राइट राइट। टेलीविजन। टेलीविजन को हाँ, जो टीवी। केबल आपको देता है, टेलीविजन वाला आपको जो केबल देता है ना, वो कैसे देता है? दिस इज ओनली द वे ही इज गिविंग फ्रॉम हिज ऑफिस और हिज होम, इज जस्ट टेकिंग द वन केबल and giving that cable to your house, then next house, then next house, the next house, and so on. So that means that is also a network, and that is a television network. वो television network है. In that television network, what happened? What he is doing? He is making a network. He is making a network of television. But television का network बना रहा, that means he is using the topology. So which topology he is using? He is using the bus topology. So bus topology is not used nowadays in computer, but still this topology is used. But where it is used for television network. तो टेलीविजन नेटवर्क के अंदर ये टोपोलॉजी आज भी क्या होती है, यूज होती है. Now we'll just discuss about some features about this topology, what are its problems, and that before that one we'll just read the what are the few lines written in the slide. First line, in bus topology all the devices are connected with a single cable or backbone. तो इसमें भी डिस्कस करें कि ये टोपोलॉजी में क्या होता है. There is a single cable, and from this single cable all the computers, we will call computers because we are studying computer network, therefore we'll speak about the computers only. All the computers are connected with single cable, or just called the backbone. It support half duplex communication. Now it support half duplex communication means will happen in this communication. Half duplex का meaning क्या होता है? हाफ सर डुप्लेक्स एट का अ मतलब सेम टाइम, रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं? एट द सेम टाइम नहीं. वो सॉरी सर, मतलब एक ही टाइम बस कभी सेंड होता है या फिर रिसीव होता है? Half duplex means we can send the data, we can receive the data, but not at the same time. But not at the same time. If you are sending the data, you cannot receive. If you are receiving, you cannot send the data. तो इसमें ऐसी हो रहा है कि भी कंप्यूटर कभी डाटा सेंड कर रहा है तो वो रिसीव नहीं कर सकता, और रिसीव कर रहा था वो सेंड कर नहीं सकता, क्योंकि देयर इज अ सिंगल केबल. केबल एक ही है ना, वही केबल से डाटा को सेंड करना है, वही केबल से डाटा को रिसीव करना है. तो इसमें से कभी कोई डाटा सेंड करा तो रिसीव नहीं होगा, रिसीव हुआ तो सेंड नहीं होगा. दैट मीन्स वी डोंट वांट दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन. Which communication we want? We want the full duplex communication, or we can just call it a duplex communication, because in duplex communication we can send the data, we can receive the data at a time, we can do it. So this is, you can see, the biggest disadvantage of the bus topology. It's a half duplex system. Now again, this is one problem is that a break at a point along the backbone will result in total network failure. अभी देखो केबल एक ही है, इसमें से कभी ये केबल में फेलियर हो जाता है, कि केबल ब्रेक हो जाता है, तो टोटल what will happen, the complete network will have a failure. केबल में किसी भी तरह का कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगा, हमसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉब्लम आया तो ठीक है, इधर के कंप्यूटर नेटवर्क पे होंगे, उधर के नहीं होंगे, द प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट. तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन नेटवर्किंग. नेटवर्किंग तो ऐसा आजकल ऐसा हो गया कि नेटवर्क बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए और दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना. नो, इन दिस केस वन डिपेंड्स अपॉन द अदर. ये आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपका टेलीविजन चलते रहता है और आपकी पिछले जहाँ से केबल आपका आ रहा है, उनकी क्या होती है कि पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है. जैसा कि पावर सप्लाई ऑफ हो गई तो अपने को चैनल देखने नहीं मिलते, जबकि अपना टेलीविजन ओके है, अपना केबल ओके है, अपना लाइट ओके, एवरीथिंग इज ओके. मगर पीछे की लाइट चल गई तो व्हाट हैपन, द सिग्नल ब्रेक्स देयर ओनली. सो आपको सिग्नल्स नहीं मिलते और आपको चैनल्स देखने नहीं मिलेंगे. सो दिस इज, यू कैन से, द फेलियर ऑफ ए बस टोपोलॉजी, दैट वन डिपेंड्स अपॉन द अनदर. तो ये सिंगल केबल है, केबल में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो आगे की पूरी लाइन क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी.
सेकेंड इज दैट थिंग इज नॉट मेंशन हियर, उसके अंदर मेंशन नहीं है कि व्हाट विल अबाउट द स्पीड, स्पीड के बारे में क्या बोलेंगे, स्पीड इसकी कैसी रहेंगी? स्लो ही रहेंगे सर इसकी स्पीड। राइट, स्पीड स्लो ही रहेंगे क्योंकि केबल लीकेज है। जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आप इसके ऊपर बढ़ाते रहेंगे तो लोड उसके ऊपर बढ़ता रहेगा, और उसके ऊपर लोड बढ़ेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएंगी। जैसे कि अपने पास एक ही रोड है, एक ही रोड है तो उसके ऊपर एक दो लोग चलेंगे, तो एक लोग चलेंगे तो अकेले आप है तो बहुत फास्ट चलाएंगे गाड़ी, दो तीन लोग आ जाएंगे उसकी स्पीड स्लो हो जाएंगे, जैसा बहुत पब्लिक हो जाएंगे तो और स्लो हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा हो गए तो आपको बिल्कुल स्लो चलना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव वन लाइन ओनली। So what happened just say about the speed of this network, you can see that as number of computer increases the speed decreases। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रहेंगे ना उसके अंदर, एक या दो कंप्यूटर का नेटवर्क तो नहीं रहेगा, मगर मेंशन क्लियर करना चाहिए कि स्पीड कैसा डिक्रीज होगी। एज अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्ट इंक्रीजिंग द स्पीड स्टार्ट डिक्रीजिंग, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बहुत हो जाएंगे तो स्पीड और ज्यादा क्या हो जाएंगी इसके अंदर, डाउन हो जाएंगी। एंड इन नेटवर्क व्हाट हैपन, नेटवर्क में क्या होता है, कभी भी कंप्यूटर्स बढ़ते रहते, कम नहीं होते रहते। आपका नेटवर्क कभी भी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका ऑफिस है तो आप डे बाय डे जैसा मंथ में गया होंगे आपके कंप्यूटर्स बढ़ने वाले हैं, आपका दूसरे से कनेक्ट होंगे, और किससे कनेक्ट होंगे, और किससे होंगे, नेटवर्क आपका कम नहीं होगा, यू विल इंक्रीज योर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क ओनली। सो व्हाट हैपन, द स्पीड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। और आजकल तो नेटवर्क की स्पीड बहुत चाहिए आपको, नेटवर्क की स्पीड नहीं है तो कुछ नहीं होता। जैसे कि also we are having a class, this also one way of networking only, and if the speed is slow what will happen, you are not able to connect हो भी गए तो आपको वॉइस नहीं आएंगी, आपको वीडियो नहीं आएगा, आपकी शेयरिंग नहीं होगी, then what is the use of connecting that? So in today's era also the connectivity should be there but with a good bandwidth, अपन जिसको bandwidth बोलते हैं, लास्ट टाइम पर डिस्कस करते हैं about the term bandwidth, मतलब इसमें अपलोड और डाउनलोड दोनों भी क्या होता है, कंसिडर होता है। सो द स्पीड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेटवर्क। नेटवर्क आपने बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि हो गया आपका काम, कुछ चीजें ऐसे रहती है कि उनको उतनी बैंडविड्थ रहा जब भी वो चलते हैं। कभी आप आजकल देखेंगे ना हर चीज के लिए बैंडविड्थ मेंशन करते हो, आपको कनेक्ट चाहिए, और ये ऐसा नहीं बोलते थे कि इंटरनेट होना, वो तो ठीक है सबके पास ही इंटरनेट है, तो वो बताते हैं कि इंटरनेट चाहिए एंड इंटरनेट शुड बी ऑफ दिस ऑफ बैंडविड्थ, इतनी इतनी बैंडविड्थ का इंटरनेट चाहिए, जब भी ये आपका एप्लीकेशन और ये सॉफ्टवेयर और ये चीजें आपकी कनेक्ट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। सो लाइक दिस देर आर सम डिसएडवांटेजेस। कभी एडवांटेजेस की बात करें तो व्हाट विल बी द एडवांटेजेस, तो पहली बात करेंगे केबल कम लग रहा ना, केबल कम लग रहा, इस वजह से इसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कम है। तो दिस आर द सब एडवांटेजेस, मगर इनको कोई बड़े एडवांटेजेस नहीं है कि केबल का कॉस्ट से कितने पैसे बचाएंगे आप, मगर प्रॉब्लम जो इतने हो रहे उसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं ना उसमें। और इसमें फेलियर जब होता है तो ट्रबल शूटिंग बहुत मुश्किल होती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। और आपका ये तो ठीक है 5 कंप्यूटर का नेटवर्क है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मगर नेटवर्क बहुत बड़ा रहता है, 100 200 500 कंप्यूटर का नेटवर्क रहता है कंपनी का, तो वहां तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे कि प्रॉब्लम किधर है। So therefore nowadays we can say that practically this topology is totally closed for computers. Okay, for other devices we have just seen the example that still this topology is used, but for computer this topology is totally closed। यानी बहुत साल एकदम स्टार्टिंग में दिस टोपोलॉजी को, क्योंकि स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स का इतना यूज भी नहीं था, नेटवर्क फेलियर भी होता था कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, स्पीड की कोई बात नहीं थी, स्पीड कोई इशू नहीं था क्योंकि इतना ग्राफिकल भी नहीं था, तो इन दैट केस इट वाज ओके, नेटवर्क चलता नहीं चलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। बट इन टूडेज केस इफ देयर इज नो नेटवर्क यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ है और आपके पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप क्लास भी अटेंड नहीं कर सकते, आपकी बैंकिंग नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप नहीं चलेंगे, किसी से भी कांटेक्ट करेंगे इफ यू डोंट हैव इंटरनेट। इंटरनेट मींस इट्स योर कनेक्टिविटी ओनली, नो आपकी कनेक्टिविटी आपका नेटवर्क ही है वो उसके अंदर। ओके सो गॉट द फर्स्ट वन देन, द फर्स्ट टोपोलॉजी इज क्लियर। यस सर। Now we'll start with the second one. What about the second one? Second is called the ring। जैसा उसके नाम से मालूम हो रहा रिंग टोपोलॉजी कैसे रहेंगी, दिस विल बी द वे ऑफ कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स इन अ रिंग फॉर्म। यानी इसमें कभी आप देखेंगे ये कंप्यूटर से अपन स्टार्ट करेंगे, इधर स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इसके अंदर, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आउटपुट है इसके इनको है, इसका आउटपुट इसके इनको, इसका आउटपुट इसके इनको, इसका आउटपुट इनको, ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन द रिंग फॉर्म। ये टोपोलॉजी में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें
एक कंप्यूटर पे कभी बंद हो गया तो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो जाती है, टोटली नेटवर्क फेल्स। यानी टोपोलॉजी को कभी आपको नेटवर्क पे लाना है, ये टोपोलॉजी को वर्किंग में एक्टिवेट लाना, तो पूरे के पूरे कंप्यूटर्स आपके ऑन रहना कंपलसरी है। इफ वन ऑफ द कंप्यूटर इज नॉट स्टार्टेड ऑल्सो, इट्स नॉट एक्टिवेटेड ऑल्सो, द नेटवर्क विल नॉट स्टार्ट। जबकि किसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना केबल में प्रॉब्लम है, ना कंप्यूटर में कुछ, मगर सभी कंप्यूटर्स चालू रहना। आपको कभी 2 कंप्यूटर में भी डाटा ट्रांसफर करना है, आपके पास 100 कंप्यूटर्स है, तो यू हैव टू ऑन ऑल द 100 कंप्यूटर्स। और वन थिंग इसमें क्या है कि डाटा कैसा फ्लो होता है, इन रिंग फॉर्म, ये फॉर्म में फ्लो होगा डाटा, बस होगा। जबकि ये कंप्यूटर इसके बाजू में, इफ दिस कंप्यूटर वांट टू सेंड द डाटा दिस कंप्यूटर, तो हाउ द डाटा विल फ्लो, the data will flow like this, from this computer, from this computer to this computer to this computer and back to the this computer. So here also there is much problem is there. ये तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है कंपेयर टू द बस टोपोलॉजी। इसमें तो पूरे कंप्यूटर्स आपको ऑन करना है, और इसके अंदर जो है सिक्योरिटी का भी इश्यू आता है, बिकॉज as I'm sending the data from this computer to this computer, the data is not transferred directly. The data is moving from all the computers, तो सभी कंप्यूटर में के थ्रू डाटा ये कंप्यूटर में पहुंच रहा है। So data can be hacked also। डाटा को रोक सकते हैं, डाटा को हैक कर सकते हैं, कोई भी हैक कर सकते हैं। So like this what this is a way of making topology। कैसा रहता है कि हर किसी के मेथड रहते हैं, सब चीज इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। जल्द से नाउ in ring topology, each computers or devices connected to its neighbors forming a loop। अभी देखो लूप इसको बोलते हैं जो क्लोज रहता है। The loop has been established। Failure of a single device or a break anywhere in the cable causes the full network to start communicating। This is a very big disadvantage of this topology। एक आधा फेल हो जा रहा डिवाइस स्टार्ट होना, या आपने स्टार्ट ही नहीं करी, कुछ भी करे, या कुछ ब्रेक हो गया, तो टोटल नेटवर्क क्या होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है कम्युनिकेटिंग। तो इसमें तो ट्रबल शूटिंग इज वेरी वेरी हाई। अभी ट्रबल शूटिंग का भी इसमें करना है तो बहुत मुश्किल से इसमें क्या होता है, ट्रबल शूटिंग होता है। Okay, so like this is having so much problem is there in this topology। तो ये topology भी practically use नहीं होती। So what about the ring topology? It's clear? It's okay? Okay, now we'll come to the third one now, because we have to finish all the 4 today at least. The mesh topology. Now just see the figure first of all, the mesh topology. Now in mesh topology, we are taking the example of 6 computers, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If you just see the figure, what happens, suppose this is our phone computer, cable from key 1 to this one, this one, this one, this one, this one. So total 6 computers are there. So from each computer 5 cables are coming like this. If we have 100 computers, so 99 cables will be coming from each computer। So just imagine, just सोचो ये आपका कभी 100 कंप्यूटर्स का कभी आपका नेटवर्क है, तो हर कंप्यूटर से 99 केबल्स लगेंगे। 99 केबल्स किसको बोलेंगे? और कंपनी में क्या, कंपनी में तो 500 800 1000 कंप्यूटर्स भी रहते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि आपको कैसे कनेक्शन करना है। सो फिर जस्ट सी नाउ कि ये बहुत अच्छा नेटवर्क है, कभी ये बन गया तो बहुत अच्छा है, बन गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हर कंप्यूटर के लिए अपने लिए अलग अलग केबल है, तो यहाँ पर कभी एक कंप्यूटर बंद भी होता तो किसी के ऊपर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, द नेटवर्क गोस ऑन। Coming to the speed, each computer is given a separate cable। So what about the speed? The speed does not matter, the speed will be very good। कितने भी कंप्यूटर्स बढ़ाओ, स्पीड के ऊपर उसको 1% का भी फर्क नहीं होगा। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, द स्पीड इज गुड। प्रॉब्लम कभी आता है, कभी आप इसमें प्रॉब्लम आया तो सिर्फ यहाँ बैठ के सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम क्या है, दूसरों को आप टच भी नहीं करेंगे उसको, बिकॉज यू नो दैट द प्रॉब्लम इज हियर, दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम हियर ओनली। जहां नेटवर्क नहीं आएगा वहां बैठ के कुछ आप चेक करेंगे, तो द ट्रबल शूटिंग इज वेरी इजी, एवरीथिंग इज ओके। बट द प्रॉब्लम इज दैट प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक द नेटवर्क लाइक दिस। 5-6 कंप्यूटर का है तो बना लेंगे अपन, जैसे कि देखो 6 कंप्यूटर का बना लिया आपने, अब मैं यहाँ पे 7वां कंप्यूटर लगाता हूँ, तो सब कंप्यूटर केबल निकालना पड़ेगा।
theoretically it's very good, we just make a line, अपन यहाँ पे लाइन बना देते हैं, लाइन खींच डालेंगे, यहाँ पे बन गया, एक और लगा दे, एक और लाइन खींच डालेंगे, that is the theoretical part. But practically how you will connect the computers, जैसे 100 केबल कंप्यूटर्स पे कनेक्ट कैसा होंगे, तो ये कोई पॉसिबल बात नहीं है ये. Therefore, this is a good topology. Mesh is a good one, but practically it's not possible to create the mesh topology. Mesh topology बनाना possible नहीं होता. That's the thing. It's okay. Speed is good, connectivity is good, troubleshooting is easy, everything is good. I will just read it now. In mesh topology, each device is directly connected to the all other devices. The disadvantage of is the number of NIC required on each device and complex cabling. केबलिंग कितनी कॉम्प्लेक्स होंगी और इतने पिंस के लिए आपको लैन कार्ड कितने लगाना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट द प्रैक्टिकल थिंग. वो प्रैक्टिकल बात है नहीं कि आप इतने केबल्स, इतने लैन कार्ड, इतने उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको लगा नहीं सकते उसमें. इसलिए मेश टोपोलॉजी को प्रैक्टिकली यूज नहीं हो. ओके, दिस आर द मेथड. कैसा होता है कि हर चीज के मेथड्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ कि आपको जो है बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आप ऊपर चले गए, 10 फ्लोर या जितने भी फ्लोर की बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग के फ्लोर के आपके ऊपर ऊपर आप चला गए, ठीक है, फ्लोर पे चले गए. अब आपको नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने के मेथड्स क्या है तो बताएंगे. 10 फ्लोर के ऊपर आप चले गए, अब आपको नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने के मेथड्स क्या है आपके पास. सर सीढ़ियों से उतरेंगे ना. एक सीढ़ियों से उतरेंगे, ये एक मेथड है. दूसरा, लिफ्ट अगर रही सहूलत तो लिफ्ट से. हाँ चल ठीक है, लिफ्ट भी है, लिफ्ट है. सेकंड मेथड क्या हो गया, आप किससे हो गए, लिफ्ट से उतर गए, ये सेकंड मेथड हो गया. थर्ड मेथड क्या है, जंप करके. जंप करके, राइट भाई, वो भी एक मेथड ही है ना, मगर वो मेथड प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, नो सर. वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. नहीं. तो इस तरह से मेथड्स बहुत रहते हैं, मेथड्स रहते हैं, मगर सभी मेथड्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहते. तो इस तरह से ये टोपोलॉजीज भी हैं, देयर आर मेनी टोपोलॉजीज आर देयर, मगर सबके सब टोपोलॉजीज क्या है इसके अंदर पॉसिबल, इसके अंदर नहीं होते. ओके, सो क्लियर अबाउट दिस वन. यस सर. चलो लास्ट टोपोलॉजी लेते हैं. What's the last topology? The last topology is this one. It's the star topology. Now just see the figure first about the star topology. This is the star topology. In star topology, if you want to have a network, first of all we require a device. अभी तक कहीं भी अपने कोई डिवाइस वगैरह नहीं लग रहा था, मगर इसमें एक डिवाइस लगता. दिस डिवाइस इज कॉल्ड द हब और स्विच. प्रीवियसली पुराने उसमें हब रहता था, उसको हब बोलते थे, और अब जो आता है स्विच आता. यू कैन जस्ट सी दिस इज लाइक द बॉक्स, और इसमें सब क्या रहते हैं, कनेक्शंस के केबल्स डालते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क यू हैव टू सेलेक्ट द स्विच. स्विच कैसा आता है मार्केट में से, आपको इस स्विच को क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा. तो स्विच अपन कैसा परचेस करेंगे, स्विच परचेस करेंगे अपन 8 पोर्ट का, या फिर 16 पोर्ट का, या 32 पोर्ट का, या 64 पोर्ट का, ऐसे पोर्ट के सेलेक्ट करेंगे. जैसा मुझे आपको मालूम है, आपके पास 8-10 कंप्यूटर है, तो आप क्या करेंगे 16 पोर्ट का ले, ताकि इन फ्यूचर में 2-3 कंप्यूटर्स क्या करते हैं, आप बढ़ाएंगे भी, तो वो हिसाब से क्या करेंगे अपन स्विचेस को क्या करेंगे, स्विच को लेंगे. 16 पोर्ट का मतलब आप 16 कंप्यूटर का नेटवर्क क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर बना सकते हैं उसमें. तो यही टोपोलॉजी बहुत बेस्ट है कि इसमें अलग अलग सबके अपने अपने अलग केबल्स रहते हैं. अब ये आप 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क देख रहे हैं, कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो 3 नेटवर्क पे आराम से आएंगे, ये नहीं आएंगे, तो आपको सिर्फ इसको चेक करना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है. और फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डाटा you will just see that each computer can send and receive the data through a separate cable. The separate cables are there. From this cable, what the computers can do, they can send the data, they can receive the data. So this is one of the best topology that has been used, and this topology भी कई सालों से यूज हो रही है, and still now this topology has been used on it.
So what are you can say the advantages? The advantage that this you can say that the problem, if the problem occurs in one computer, we have to just check that computer only. तो उसको क्या बोलेंगे अपन कि trouble shooting is easy. Second क्या बोलेंगे about the speed? The speed is good. Why the speed is good? Because individual cables are there. सबके अपने अपनी इंडिविजुअल केबल्स है, तो उसके लिए जो है स्पीड भी क्या रहेंगी, अच्छी रहेंगी उसके अंदर. फिर इसमें डिसएडवांटेज क्या है बोलेंगे, तो डिसएडवांटेज क्या बोलेंगे कि ये रिक्वायर सेंट्रल डिवाइस, ये सिर्फ आपको परचेस करना पड़ेगा. नेक्स्ट यू रिक्वायर मल्टीपल केबल्स, आपको केबल्स लगेंगे, तो केबल्स आपको लेंगे, आपको स्विचेस लगेंगे, तो आपको जो है डिवाइसेस लेना पड़ा, आपको केबल्स लेना पड़ा, तो फिर इसके लिए आपको क्या लगाएगा, आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा. बट प्रैक्टिकली यू डोंट हैव टू पे सो मच, मतलब बहुत ज़्यादा भी इसके लिए आपको क्या पे नहीं करना पड़ा. आप नेटवर्क बना रहे, इतना पे भी नहीं कर सकते, देन व्हाट इज द यूज. सो देयरफॉर दिस टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज. इसके बारे में देखेंगे. फर्स्ट लाइन, द मोस्ट कॉमन यूज टोपोलॉजी, सबसे कॉमन यूज टोपोलॉजी है वो कौन सी है, वो है कि स्टार टोपोलॉजी. What the system is that it consists of one centralized device which can be either a switch or hub. ये डिवाइस को अपन क्या बोलेंगे, इसको सेंट्रल डिवाइस बोलेंगे. The devices connected to various port of central devices, और इसके बीच में क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइसेस को आप कनेक्ट करेंगे और according to the requirement will select the device. Okay, so clear about the star topology? Yes, sir. So this way, for what happened, we have taken all the four topology, that is the star topology, ring topology, and the mesh topology. So any question then in the today's topic? ठीक है भाई, नहीं तो अपन आज की क्लास स्टॉप कर सकते हैं, कल इसके ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे.